Good morning, everyone. So, as we have already started with our chapter first of history, which was the French Revolution, in which we saw the various causes for the French Revolution, what the people were going through, and we saw the political, economic, social causes. Then we saw the rise of middle class and the role of philosophers, then subsistence crisis, and then when finally Louis XVI thought of increasing the taxes, what were the problem that the third estate people actually experienced, and then finally they said that we will not accept this one person one vote, we will not accept one estate one vote system. We want one person one vote. And then when the king did not agree, they walked off the assembly and they formed national assembly, and they were forming a constitution. So at one side they were forming the constitution, at the other side we saw that people were totally wanting to somewhat bring change in the other parts of the France, क्योंकि the France was having lot of problem. मतलब क्रॉप्स फेल हो रहे थे, जो बेकर्स है वो ब्रेड को होल्ड कर रहे थे, किंग ने ट्रूप्स भेज दिए थे पेरिस पे, रूमर फैल गया था कि बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं वो जो स्मॉल पीजेंट्स वगैरह उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, एंड एवरीवेयर देयर वर लॉट ऑफ रिवोल्ट। और जैसे इतने सारे रिवोल्ट हुए तो फिर हमने देखा फाइनली राजा जो है ही एडमिटेड टू द नेशनल असेंबली एंड ही सेड ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस नेशनल असेंबली एंड फ्रॉम नाउ ऑन वी France will not be a monarchy, it will be a constitutional monarchy where the power will be separated between the legislature, executive and the judiciary, and king will not be the only person who will decide everything. ठीक है, अब ये तो उनका फाइनल डिसीजन हो गया. That is what till we this is the portion till we have completed in our previous class. Now we move on to the next important part. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो नया सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये वर्क कैसे करेगा, दैट इज व्हाट वी विल डू. So if we see into the more, you can say, detailed portion of it, Constitution of 1791 जो है उसमें क्या क्या लिखा हुआ था. Listen to it very very carefully because it is very very important from the point of view of your exams also. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो है इसने पावर ऑफ मेकिंग लॉज दे दी थी इन द हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, मतलब कहीं ना कहीं एक इलेक्टेड बॉडी जो है उसके अंदर आ गया था द पावर टू मेक लॉज. अब अपने पूरा सिस्टम देखते हैं कि है ना, ये जो सिस्टम था कि इलेक्शन कैसे होंगे, ये क्या था इनका. नाउ इफ यू हैव योर बुक्स, यू शुड कीप योर बुक्स ओपन ऑन पेज नंबर 10 बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली. अब ध्यान से सुनो एकदम. सबसे पहले तो फ्रांस के सारे सिटीजन को डिवाइड कर दिया था इनटू टू. विच टू पार्ट? एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो वोट दे सकते थे और पैसिव सिटीजन वो थे जो वोट नहीं दे सकते थे. अब लिसन अगेन वेरी केयरफुली. एक्टिव सिटीजन वो लोग थे who were 25 years or more, men. ठीक है, only men above the age of 25 years of age and who paid taxes equal to 3 days wages of a worker. ओके, यानी एक वेज लेबरर जो था, एक वेज अर्नर जो था या डेली वेज वर्कर जो जैसे था, उसकी जो इनकम थी 3 डेज की, अगर उतना आप टैक्स देते हो तो ही आप क्या होगे, यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग वोट. ओके, आई विल रिपीट अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो for your understanding. Active citizens are those men. Okay, active citizens are those
men who were above 25 years of age and paid taxes worth of 3 days wages of a worker. Now, when I say 3 days wages of a worker, तो you may think कि वो तो बहुत कम पैसे होते हैं, पर you generally know कि जो अपने taxes देते हैं वो क्या होता है, टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो जनरली कम वैल्यू ही होती है. So at that time it was something which was difficult for few to earn. अब ये लोग जो हैं, now imagine total जो population थी that was 28 million फ्रांस की, उसमें से सिर्फ 4 मिलियन लोग थे जो कौन थे, जो थे एक्टिव सिटीजन, एंड रेस्ट जो है दे ऑल वर पैसिव सिटीजन. पैसिव सिटीजन में आते थे सारे मेन below the age of 21 years, all these women and children, sorry 21 and 25 years, so all the men below the age of 25 years and all the women and the children and also the men above the age of 25 years जो टैक्सेस नहीं देते थे या जो टैक्सेस 3 days wage of a labor से कम देते थे, they were also not included in the active citizens. अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स है ये लोग मिलके वोट देते थे और ये लोग मिलके चूज करते थे 50,000 इलेक्टर्स को. किसको करते थे ये लोग? 50,000 इलेक्टर्स. ठीक है, ये 50,000 इलेक्टर्स जो है ये वापस से इलेक्ट करते थे लोगों को, और ये जिनको इलेक्ट करते थे वो बनते थे 745 मेंबर्स, और ये लोग बन जाते थे नेशनल असेंबली. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, जो एक्टिव सिटीजन्स हैं who were 4 million people, they elected 50,000 people, and these people, that is the electors, chose or elected the members of National Assembly who were totally 745 in number. Okay, so I suppose this much is clear and we can understand कि ये जो power है to elect was not given to everyone. Okay, that means somewhere when we say कि ठीक है this is democracy or something of that sort, we should understand कि ये total democracy नहीं थी. क्यों नहीं थी ये total democracy? Because everyone was not given the right to vote. ठीक है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेस या उनकी जो अर्निंग थी इसके बेसिस पे क्या किया जाता था, उनको राइट टू वोट दिया जाता था. अब ये जो राइट टू वोट है इसके अलावा और क्या चीजें होती थी, दैट वी शुड नो. ये तो हो गया अपना लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर. उसके अलावा वी हैड 2 or 3 more important things which were our executive, and एग्जीक्यूटिव में इंक्लूडेड होते थे आवर किंग एंड मिनिस्टर्स. ओके, अब ये जो हमारे किंग्स एंड मिनिस्टर्स हैं ये वो लोग होते थे जो एग्जीक्यूशन करते थे किस चीज का, जो लॉज बनते हैं. कौन से लॉज? जो लॉज बनाती है नेशनल असेंबली. ओके, so when I say the laws were made by the National Assembly, यानी नेशनल असेंबली थी लेजिस्लेचर, और उसके बाद ये जो लेजिस्लेचर है लॉ बनाने के बाद एग्जीक्यूट करते थे किंग और मिनिस्टर. ये जो मिनिस्टर्स हैं इनके ऊपर टोटल कंट्रोल कौन करते थे? नेशनल असेंबली के लोग. तो जो नेशनल असेंबली के लोग थे वो टोटली क्या करते थे? कंट्रोल करते थे over the group of ministers and the king as well. यानी किंग ने अभी टोटल पावर अपने लूज नहीं किए हैं. किंग is still having few powers and king even had one veto power. veto power क्या होता है? veto power that कुछ ऐसे डिसीजन है जो जब तक किंग अप्रूव नहीं करता तब तक वो फॉलो नहीं होते थे. नाउ इसके अलावा जो हम बोलते हैं जुडिशरी, बिकॉज आई सेड दैट few powers are also among the judiciary
तो ये जो जुडिशरी है ये कैसे चूज होते थे, इनको भी कौन इलेक्ट करते थे, एक्टिव सिटीजन ही इलेक्ट करते थे, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है ऑफ पावर शेयरिंग, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ऑफ फ्रांस। अब ये जो पूरा सिस्टम है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन थ्रू अ टेबल। टुडे लेट अस मूव इनटू द मोर थ्योरेटिकल पार्ट। तो पावर शेयरिंग में फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैसे होता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में, जो एक्टिव सिटीजन थे, जो थे 25 इयर्स अबव एज, वो पे करते थे टैक्सेस इक्वल टू 3 days वेजेस ऑफ अ लेबर, वो ही सिर्फ वोट कर सकते थे। वो लोग वोट करके इलेक्ट करते थे 50,000 इलेक्टर्स को, 50,000 इलेक्टर्स वापस इलेक्ट करते थे किसको, नेशनल असेंबली को, जिसमें होते थे 745 मेंबर्स। और ये लोग मेनली कंट्रोल करते थे, ये लोग लेजिस्लेचर थे, और इन्हीं में से बनते थे मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल करते थे नेशनल असेंबली के लोग। और इसके साथ साथ जो किंग था, ही वाज आल्सो अ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड ही हैड द वीटो पावर। एंड देन जो जजेस है उनको इलेक्ट करते थे एक्टिव सिटीजन ही, और पैसिव सिटीजन वो थे जिनके पास राइट टू वोट नहीं था। एंड दीज वर द पीपल who which included women, children and men either below 25 years of age or who did not pay the required tax. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब अपने लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है, और इन लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो स्टार्ट होता है with the Declaration of Rights of Man and Citizen. अब जब मैं बोलती हूँ Declaration of Rights of Man and Citizen, this is actually a kind of the, you can say, जो जहाँ पे basic rights लिखे हुए, जैसे in our constitution we have the first page which is preamble where our basic fundamental rights are stated, वैसे ही इनका first page था Declaration of Rights of Man and Citizen. So along with this we will notice that this Declaration of Right of Man and Citizen जो है, इसमें बेसिक राइट्स ऐसे थे जो अपने अनएलियनेबल राइट्स होते हैं, और अपने अनएलियनेबल जो राइट्स हैं वो यानी कि जो हमसे अलग नहीं किए जा सकते हैं, and these included the right to life, and these included the right to freedom of opinion, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड ये सारे जो हैं इनको कहीं भी हम लोग अपने आप से, मतलब एवरी सिटीजन एक्चुअली गॉट दीज राइट्स एंड नोबडी कुड बी कंसिडर्ड, और नोबडीज राइट्स कैन बी टेकन अवे। बट ये जो राइट्स है ये जनरली किसके लिए थे, मेन के लिए ही थे। यू विल नोटिस दैट ऑल दीज राइट्स वर जनरली गिवन ओनली टू मेन। As you can say with the name itself, the Declaration of Rights of Man and Citizen. So यानी कि women were not given rights in many terms. So we will see later on women will also fight for it. That why aren't you giving us these rights? Because we are the one who have fought in every way to move the France towards a constitutional democracy or this kind of thing. So now we will move on to few of the political symbols. You already know कि whenever there is a kind of struggle या कोई revolution होता है, so people generally tend to use few symbols, and these symbols are the ones which somehow depict few abstract ideas. Abstract ideas यानी ऐसे ideas जिसको हम बोलेंगे कि जिनको हम ऐसे उसमें नहीं डिपिक्ट कर सकते। हाउ कम, मतलब कोई सिंबल हम असली में पर्सोनिफिकेशन नहीं कर सकते, पर्सन के फॉर्म में या किसी थिंग के बेसिस पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे ये लोग, पर इन लोगों ने उनको सिंबलाइज किया था ऐसी फीलिंग्स को, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मतलब इमोशंस को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो जैसे ब्रोकन चेन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। बंडल ऑफ रॉड्स जो एज आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड, अपनी एक स्टोरी है कि अगर एक लॉग ऑफ एक पतली सी स्टिक का उसको तोड़ना बहुत आसान है,
बट जो अगर अपने पास बंडल ऑफ रॉड्स हो तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यूनिटी लाइज इन स्ट्रेंथ। तो ऐसे वाले स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल, इटर्निटी मतलब समथिंग विच इज नॉट हैविंग एंड और स्टार्टिंग। तो ये वाले जो जैसे इन्होंने बहुत सारे सिंबल्स, जैसे अपने सिंबल्स हैं ऑफ यू कैन से truth and justice जो है, where a lady is holding a balance in her hand and is blindfolded। तो मतलब कि जो हम ये इससे डिपिक्ट करते हैं कि जो लॉ होता है वो इज इम्पार्शियल, किसी को फेवरेटिज्म नहीं करता है। तो वैसे ही इनके भी लॉ से रिलेटेड वैसे सिंबल्स थे। देन देयर वाज रेड कैप, जो स्लेव, हम देखेंगे आगे यहाँ पे स्लेव भी जो है दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम पीरियड इन फ्रांस। तो जो लोग फ्री हो जाते थे स्लेवरी से वो रेड कैप पहनते थे, ये दिखाने के लिए कि वी आर फ्री। विंग्ड विमेन जो है पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ थी। नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस थे ब्लू, व्हाइट एंड रेड। लॉ टैबलेट है जो लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। यानी ये जो सिंबल्स है, दीज वर एक्चुअली द सिंबल्स which somehow told us that the France was moving towards a more, you can say, country which is more democratic, more free, equality जैसी जो भी notions है ये सारे के सारे common थे। and it actually happened because France was moving towards a more, now we will see in the next phase कि it will become more democratic। तो थोड़ी है ही, पर अभी ये रिपब्लिक भी होगी। रिपब्लिक हम अभी देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास that the king is not happy with his position. Why is the king not happy? Because he is not the only, you can say, is not the absolute ruler. वो सारे डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते हैं। So he is somehow feeling bad about it। और जो यूरोप में इसके आसपास की कंट्री वाले लोग हैं ना, उनको भी बुरा लगेगा कि कहीं भाई ऐसी डेमोक्रेसी चीज जैसी चीज हमारी कंट्री में ना आ जाए। अगर ऐसी डेमोक्रेसी वाली चीज हमारी कंट्री में आ गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो मतलब हमारा भी राजपाट छूट जाएगा कहीं ना कहीं। तो व्हाट विल ही एंड द अदर कंट्रीज प्लान? दे विल प्लान दैट लेट अस अगेन अटैक ऑन द फ्रांस, और फ्रांस को जो है वापस मोनार्की बना देते हैं। पर जो कॉमन लोग हैं उनको इन बातों का पता चल जाएगा, और जैसे ही उनको इन बातों का पता चलेगा वो खुद ही जाके वॉर वेट कर देंगे अगेंस्ट दीज कंट्रीज एंड फाइनली वो लोग जीत जाएंगे। वो लोग जीतेंगे, उसके बाद वो लोग बोलेंगे ये सारी चीजों के लिए ना रिस्पॉन्सिबल कौन है? किंग ही रिस्पॉन्सिबल है। किंग क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि वो है ना कहीं प्लानिंग कर रहा था टू अटैक फ्रांस, और वो कहीं ना कहीं दे विल गिव हिम द टर्म ऑफ बीइंग अ ट्रेटर, मतलब देशद्रोही जैसे है। और बाद में उसको एग्जीक्यूट भी कर देंगे, मतलब उसको मार देंगे, बिकॉज वो बोलेंगे वो ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉब्लम्स का जो फ्रांस को फेस करनी पड़ रही है। तो ये जो, और उसके बाद जब हेड ऑफ द कंट्री भी इलेक्टेड हो जाएगा तो वो एक रिपब्लिकन कंट्री बन जाएगी। ये जो सारी स्टोरी है ये अपने वील स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। So for today we will do only this much. Tomorrow we will understand जो ये Constitution of 1791 that we have studied. We will understand its truth table also. Today we have done more theoretical part. अपने कल इसको टेबल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, and then we will proceed with what happens in France next. Okay, so this is it for today. I suppose everything is clear. We will continue with the class. Now, if any one of you is having any problem, please feel free to ask, and we'll meet now in the next class.